Good morning, students. Now we are starting with our question number 16, that is explain the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. First of all, what is linear momentum? So linear momentum is the study of motion of the body. So linear momentum क्या करता है? Motion of body की study करता है. It is defined as the product of mass and velocity. Mathematically ये क्या होता है? It is defined as product of mass and velocity, and it is denoted by symbol P. So P is equals to m cross v. We have to study the law of conservation of linear momentum. So conservation of linear momentum means the product of mass and velocity that will remain conserved, means constant. Constant does not mean zero. Constant means it remains same. The example for law of conservation of linear momentum is, that is firing of gun. So firing of gun is the example for law of conservation of linear momentum. So in the firing of gun, so we have two cases, that is before firing and after firing. So in before firing, जब बुलेट से फायर नहीं किया जाता तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, दैट इज लीनियर मोमेंटम. दो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, वन इज बुलेट एंड वन इज गन. सो वन इज गन एंड वन इज बुलेट. सो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये देखना हमने जब हमारे पास गन से फायर नहीं किया जाता. सो मोमेंटम अभी हमने रीड किया है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम ऑफ गन इज, सपोज द मास इज m1 and the velocity of gun is v1, and for the bullet, suppose the mass is m2 and the velocity of bullet is v2. So we know that before firing the gun and bullet are at rest, so the velocity in both the cases is zero. So 0 cross something is 0, so the net momentum before firing is equals to 0. So in the second case, after firing, the bullet will move in forward direction and the gun will move in backward direction. So again the total momentum of gun plus total momentum of bullet. So momentum of gun, suppose we can write it as m1 v1, and momentum of bullet we can write it as m2 v2. Now the mass of the gun is high as compared to bullet. Suppose the mass of the gun is 10 and mass of the bullet is 2. Okay, so we suppose the terms, the mass of this gun is 10 and the mass of this bullet is 2. So the bullet move very fastly in forward direction. Suppose the velocity of the bullet is 10 and the gun move in backward direction with very less velocity. So we know that when in the number line, if we go forward, the term we use positive sign, and if we go in backward direction, then term we use in negative. So the velocity we define here is minus of 2, because the gun will move in backward direction but the bullet is moving in forward direction, so we will take 10. The velocity of bullet is higher than as compared to the gun. So on multiplying we will get minus 20 plus 20, the net momentum remains 0. So the total momentum before firing and after firing, that is same, that is equals to 0. So the total linear momentum of the system remains conserved. So in question number 17, explain the law of conservation of angular momentum. So in angular momentum, first of all, linear momentum is related to the linear motion. So linear momentum में हम क्या करते थे, लीनियर मोशन की स्टडी करते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी करते थे. एंड इन द एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड टू द टर्म सर्कुलर मोशन. सो मोस्टली जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें हम सर्कुलर मोशंस की स्टडी करते हैं. सो इन सर्कुलर मोशन, जो लीनियर मोशन में हमारी वेलोसिटी थी, सर्कुलर मोशन में उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी. दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा, that is denoted by symbol omega. And mass in linear motion को circular motion में हम define करते हैं term moment of inertia से, that is denoted by symbol I. So linear motion में हम कहते हैं velocity, जो angular motion, जो circular motion है, that उसमें हम कहते हैं angular velocity. And
in linear motion we will define mass and in angular motion we will define moment of inertia. So angular momentum क्या होता है? It is defined as product of linear momentum and the perpendicular distance from the axis of rotation. So जहाँ पे rotation हो रही है हमारे वहाँ से distance देखना है. So ये हम example में देखेंगे ये कैसे distance निकालते हैं हम. So angular momentum is denoted by symbol L. It is defined as product of linear momentum. Linear momentum is denoted by symbol P, and the perpendicular distance is denoted by symbol R. So P can be written as mass into velocity and R as it is. So mass को हम क्या लिखते हैं angular motion में I, and velocity can be written by omega sign. So this is our angular momentum relation. So this is our angular momentum relation, that is L is equals to I omega R. So example is planet revolve around the sun by the principle of law of conservation of angular momentum. So जो planets होते हैं sun के around revolve करते हैं by the principle of law of conservation of angular momentum. सो एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ क्या होता है? केपलर्स लॉ ने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे रोटेट करते हैं. सो इसमें क्या कहा था जो केपलर ने, जो सन होगा इन दोनों फोकस के किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. सपोज सन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और प्लैनेट जो होंगे उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. दैट इज योर केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो हमने देखना है कि ये एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है यहाँ पे. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि एक सन है जो 2 पॉइंट्स पे हो सकता है, दैट इज ये वाले पॉइंट पे भी हो सकता है एंड ये वाले पॉइंट पे भी हो सकता है, एंड प्लैनेट उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं. एंड अब हम देखेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है. सो हमारे पास यहाँ पे टर्म है आई ओमेगा आर. सो हमने पढ़ा था एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आर. सो कंजर्व लेने के लिए इसको हमें कांस्टेंट होना चाहिए. हमें पता है कि आई क्या होता है, इसमें मास की टर्म है. कभी भी किसी प्लेनेट का मास चेंज नहीं होता. सो आई टर्म हम यहाँ पे नहीं लेंगे. सो हमें क्या चाहिए, ओमेगा आर कांस्टेंट चाहिए. ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी. आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज दिस इज अवर सन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सन है, एंड दिस इज ओवर प्लैनेट. दिस इज ओवर प्लैनेट. सो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो रोटेशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है, सन के कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है. सो प्लैनेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है. यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो अगर हम अवे फ्रॉम सन की बात करें, तो यहाँ पे बात करें हमें क्या चाहिए, ओमेगा आर हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट प्रूव करता है. सो ओमेगा आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी सपोज हमने ले ली यहाँ पे वेलोसिटी 20, एंड जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे हाई है, जो आर बहुत ज़्यादा हाई है. सपोज हमने ले लिया इसे 10. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 200. सो ये हमने 1 मंथ में देखा. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्लैनेट, तो यहाँ पे आर की वैल्यू स्मॉल है. सो यहाँ पे नियर द सन देखते हैं, अगर हम नियर द सन देखते हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू लेस है. यहाँ पे हमने क्या ली थी, 10 ली थी जब दूर था. जब हमारे पास है तो हमने क्या ली, 2 ली वैल्यू. तो यहाँ पे हमने क्या ली, यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 वैल्यू ले ली. तो जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो यहाँ पे हमें डायग्राम पे भी दिख रहा है कि अगर 1 मंथ में प्लैनेट इतना रिवॉल्व कर रहा है, तो इधर 1 मंथ में प्लैनेट बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पे 1 मंथ में बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है प्लैनेट. सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी. सो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, 200 आ जाता है. सो टोटल मोमेंटम पहले क्या था, दैट इज 200. अब बाद में जब सन के नियर है वो, तब भी कितना है, 200 है. सो टोटल मोमेंटम क्या रहा है, कंजर्व रह रहा है. एंड यहाँ पे प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट डिस्टेंस क्या है, हाई है. बट इधर अगर देखा जाए, अगर वो सन के नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है एंड प्लैनेट की जो आर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है, बट टोटल मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है. दोनों की वैल्यू कितनी है, 200 है.
सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है यूनिट का. सो नेक्स्ट वी विल डू टुमारो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.